یہ کئی دہائیاں پہلے کا قصہ ہے۔ شمالی پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں نور آباد میں احمد سلیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 ننھے بچوں کے ساتھ زندگی کے کٹھن دن گزار رہا تھا۔ غربت اور محرومی اس کے گھر کی پہچان بن چکی تھی، کیونکہ احمد سلیم کے پاس کوئی بڑی تعلیم نہیں تھی اور نہ ہی کوئی باعزت روزگار۔ وہ محض پرانے برتنوں اور اوزاروں کی مرمت کر کے تھوڑا بہت کما لیتا تھا، لیکن یہ کمائی اس کے گھر کا پیٹ بھی مشکل بھرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور پریشانیوں نے احمد سلیم کی زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا۔ کبھی وہ خود بیمار ہو جاتا، کبھی اس کے بچوں پر کوئی مصیبت آن پڑتی۔ یہ سب دکھ اس کے دل میں ایک بھاری بوجھ کی طرح جمے رہتے۔ اکثر وہ سوچتا، کیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ ایک دن وہ اپنے کچے مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر بیٹھا تھا۔ غربت اور غموں کا سایہ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں رنگ برنگے پرندوں کا ایک جھنڈ پہاڑوں کے اوپر سے اڑتا جا رہا تھا۔ ان آزاد پرندوں کو دیکھ کر احمد سلیم کے دل میں ایک دردناک آگ بلند ہوئی۔ وہ سوچنے لگا، کاش میری زندگی بھی ان پرندوں کی طرح آزاد اور بے فکری سے بھری ہوتی۔ لیکن احمد سلیم کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور تلخی بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے قریب آنے والے پرندوں کو بار بار ہنکار کر بھگا دیتا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ زندگی کے بوجھ تلے اس قدر دب گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کے دل کو چبھتی تھیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن مایوسی نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر خاموشی سے گاؤں کے کنارے بہنے والے نالے کی طرف چلا گیا اور بنا سوچے سمجھے گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ نالے کے قریب ایک نیک دل بزرگ حضرت فرید الدین اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جونی ہی انہوں نے ایک انسان کو پانی میں ڈوبتے دیکھا، بزرگ نے فوراً اپنے شاگردوں کو پکارا، جلدی کرو، اسے بچاؤ۔ شاگرد دوڑ کر احمد سلیم کو پانی سے نکال لائے اور کنارے پر لٹا دیا۔ جب احمد کو ہوش آیا تو حضرت فرید الدین نے محبت بھرے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹے، زندگی اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے، تو اسے اس طرح ضائع کیوں کر رہا ہے؟ یاد رکھ، جب وقت پورا ہوگا تو خود بخود یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، لیکن اپنی جان خود لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سن کر احمد سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولا، اے بزرگ، میں اپنی زندگی کی آزمائشوں سے عاجز آ گیا ہوں۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں مگر کامیابی نہیں ملتی۔ ہر بار شکست اور دکھ ہی میرا مقدر بنتے ہیں۔ حضرت فرید الدین نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، سب سے پہلے یہ خیال دل سے نکال دے کہ موت تیرے دکھوں کا حل ہے۔ خودکشی کمزوری کی نشانی ہے اور مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جو مشکلات اللہ دیتا ہے وہ تیرے ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ صبر کر، محنت کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ، انشاءاللہ تیرے دن ضرور بدلیں گے۔ احمد سلیم نے لرزتی آواز میں کہا، اے بزرگ، آپ دانا اور سمجھدار ہیں، مہربانی فرما کر مجھے راستہ دکھائیں، میرا اچھا وقت کب آئے گا؟ حضرت فرید الدین نے احمد سلیم کی طرف نرمی سے دیکھا اور کہا، بیٹے، میں ضرور تیری مدد کروں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ خوشحالی کے آنے کی علامت کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تجھے میری چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ احمد سلیم نے عاجزی سے کہا، اے حضرت، آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے بتا دیجئے کہ میرا اچھا وقت کب اور کیسے آئے گا۔ حضرت فرید الدین مسکرائے اور بولے، سب سے پہلے میری بات غور سے سن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نصیب جلد کھل جائے تو روزانہ ان ننھے پرندوں کو دانہ ڈال، خاص طور پر ان کو جو تیرے گھر کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر احمد سلیم حیران رہ گیا اور تھوڑا سا غصے سے بولا، مگر مجھے تو یہ پرندے بالکل پسند نہیں۔ جب بھی یہ میرے دروازے پر آتے ہیں میں انہیں بھگا دیتا ہوں۔ ان کا میری قسمت یا میرے اچھے وقت سے کیا تعلق؟ حضرت فرید الدین نے شفقت سے کہا، یہی تو تیرا امتحان ہے بیٹے۔ اکثر انسان اپنی پریشانی اور غصے کی حالت میں ان نشانیوں کو خود ہی دور کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں۔ یہ پرندے دراصل خیر اور برکت کی علامت ہیں۔ اگر تو ان کا خیر مقدم کرے گا تو تیرے لیے رزق اور آسانی کے دروازے کھل جائیں گے۔ احمد سلیم خاموش ہو گیا۔ آخر کار اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔
उसने हजरत फरीदुद्दीन की बात मान ली और घर वापस चला गया। अगले ही दिन से उसने अपने दरवाजे के सामने दाना डालना शुरू कर दिया। शुरू में दिल नहीं मानता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे महसूस होने लगा कि जैसे घर का माहौल पहले से बेहतर हो रहा है। जब भी नन्हे परिंदे इसके दरवाजे पर आकर दाना चखते तो इसके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून उतराता। इसके दिल ने कहना शुरू किया कि शायद वाकई इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक हफ्ते बाद अहमद सलीम दोबारा हज़रत फरीदुद्दीन के पास गया और बोला, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक रोज़ाना परिंदों को दाना डालना शुरू कर दिया है, और अब अजीब बात यह है कि मुझे लगता है जैसे मेरे दिन सनोरने लगे हैं, गोया कोई खुशखबरी करीब है। ये सुनकर हज़रत फरीदुद्दीन मुस्कुराए और बोले, बेटे, यही असल राज है। अक्सर इंसान अपने दुख और गुस्से में इन इलामतों को खुद ही ठुकरा देता है जो इसके इच्छे वक्त की इब्तदा होती हैं। परंतु अल्लाह की मखलूक हैं और वो तेरे घर पर अल्लाह की रहमत का पैगाम लाते हैं। इनकी कदर कर और सब्र के साथ मेहनत जारी रख। इंशाअल्लाह तेरा वक्त ज़रूर बदलेगा। ज़िंदगी में बाज़ गैर मुतवक्का वाक़यात ऐसे होते हैं जो इशारा देते हैं कि अच्छा वक्त करीब है। ये सुनकर अहमद सलीम की आंखें भर आएं और वो गहरे दुख के साथ बोला, ए हज़रत, मेरी मदद करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त के बजाय सिर्फ ज़लत देखी है। ये सुनकर हज़रत फरीदुद्दीन ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की। अहमद सलीम अदब एहतराम के साथ सुनता रहा। फिर आहिस्तगी से बोला, हज़रत, मुझे इन आयात का मतलब समझाइए। हज़रत फरीदुद्दीन ने जवाब दिया, बेटे, इन आयात का मफहूम यह है कि बादशाही और इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ही के अख्तियार में है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त अता करता है और जिसे चाहे आजमाइश में डाल देता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। इसलिए आइंदा अगर तुझ पर कोई मुश्किल आए तो सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना। इस दिन के बाद अहमद सलीम ने यह दुआ अपने दिल में बसा ली, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तो ही है, तो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। अब वो गांव के किनारे एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर अपने पुराने पेशे यानी पुराने औजार और बर्तन मरम्मत करने में लग जाता और बार बार ये दुआ दोहराता। कुछ दिन गुजरे तो अचानक एक नई आजमाइश ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह ने अपने इस बंदे को एक बार फिर आजमाने का फैसला किया। अब कोई भी उसके पास मरम्मत के लिए कुछ लाने नहीं आता था। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, इनसे उसने मुश्किल से चंद दिन का राशन खरीदा और घर का चूल्हा जलाया। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हालात मजीद खराब होते गए। वो रोज़ बाजार जाता, बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर इंतज़ार करता कि शायद कोई गाहक आ जाए, मगर सूरज डूब जाता और कोई ना आता। घर में फाके शुरू हो गए। मासूम बच्चे भूख से तड़पने लगे। 2 दिन तक सबने सिर्फ पानी पीकर गुजारा। न आटे का दाना था, न रोटी का टुकड़ा। उसकी बीवी भी गम से ढाल हो गई। वो अपने बच्चों को भूखा देख न सकी। एक दिन जब अहमद शाम को घर आया तो इसकी बीवी आंसुओं में डूबी हुई बोली, अगर आज भी बच्चों ने कुछ न खाया तो वो मर जाएंगे। अहमद सलीम, कुछ कीजिए, मैं अपने बच्चों को यूं तड़पता नहीं देख सकती। कुछ दिन और गुजरे, बच्चों के पेट में एक नवाला भी न गया। मासूम बच्चे भूख से ढाल हो चुके थे। एक दिन उसकी बीवी रोते हुए बोली, आन बेगना, बच्चों का क्या कसूर है? आज सामने वाले हाजी शरफुद्दीन के घर दावत है, वहां हलाल गोश्त पका है। आप जाकर थोड़ा सा खाना या चंद रुपए मांग लीजिए ताकि हमारे बच्चों का पेट भर जाए। अहमद सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर बच्चों की ये हालत देखकर दिल टूट जाता है। अगर तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, शायद अल्लाह वहां से कोई सबब पैदा कर दे। वो हिम्मत करके पड़ोसी के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया और कहा, अस्सलाम अलैकुम भाई, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, मगर 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे दे दीजिए। जब अल्लाह ने दिया तो मैं वापस कर दूंगा। अगर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लीजिए, बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन उसका पड़ोसी, जो गुरूर और तकबर में डूबा हुआ था, तंजिया हुंसी के साथ बोला, ए अहमद सलीम,
तो बड़ा इज्जतदार बनता था और आज। पड़ोसी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मांगने आया है, जा यहां से, निकल जा। ये कहकर उसने अहमद सलीम को जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिरा और उसके माथे से खून बहने लगा। बेबस, कमजोर और भूखा अहमद सलीम इतना अंढाल था कि मुकाबला न कर सका। वो धीरे धीरे उठा और लड़खड़ाते कदमों से गली में चलने लगा। कुछ ही फासले पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने मस्जिद के दरवाजे से अंदर कदम रखा, कपड़ों की गर्द झाड़ी, जख्म से खून साफ किया और बड़ी मुश्किल से वजू किया। फिर मुसल्ली पर खड़ा हुआ और नमाज अदा की। नमाज के बाद वो सजदे में गिर गया और वही दुआ बार बार दोहराने लगा जो हजरत फरीदुद्दीन ने सिखाई थी। ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तो ही है, तो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाइश दे, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। वो रोता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। मस्जिद के हाल में उसके आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। इसी लम्हे एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। वो एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर था, ताजिर नौमान। उसने अहमद को सजदे में रोता देखा तो दिल भर आया। वो आगे बढ़ा, सलाम किया और नरमी से बोला, भाई, मैं शहर से आया हूं। मेरे साथ मेरा साथी था जो सफर में फौत हो गया। अब मुझे एक ईमानदार और मेहनती शख्स की जरूरत है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें पूरा हक और इज्जत मिलेगी। बस शर्त यह है कि दियानतदारी से काम करना। अहमद सलीम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, बादशाही का मालिक तो ही है, इज्जत और जलत तेरे ही अख्तियार में है। यूं उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। मस्जिद में मिलने वाले उस नेक दिल ताजिर ने अहमद को अपने साथ मुलाजिम रख लिया। पहले ही दिन उसने कुछ रकम दी ताकि अहमद अपने बच्चों के लिए खाना खरीद सके। अहमद खुशी से भागता हुआ घर गया। इसके हाथ में रोटी, गोश्त और फल थे। बीवी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखों में आंसू भर आए। सबने मिलकर खाना खाया और सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन से अहमद सलीम ने ताजिर नामान के साथ काम शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे बाजार जाता, दुकान खोलता, गाहकों से मुस्कुराकर पेश आता और हर काम में ईमानदारी को तरजीह देता। कई साल यूं ही गुजरते गए। कारोबार बढ़ता गया और अहमद की जिंदगी में वो सुकून लौट आया जो बरसों से गायब था। फिर एक दिन ताजिर नौमान ने मुस्कुराकर कहा, अहमद सलीम, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसे दियानतदार और मेहनती इंसान कम देखे हैं। तुम्हारी बदौलत हमारा कारोबार फल फूल गया। अब मैं अपने शहर वापस जा रहा हूं और ये दुकान, ये सामान सब तुम्हारा है। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अहमद की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा जहां कुछ परिंदे उड़ रहे थे और उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, मैंने उन परिंदों को दाना दिया था और तूने मुझे रिस्क की बारिश अता कर दी। यूं दुकान अहमद इदरीस के नाम हो गई। इसने अपनी मेहनत, दियानत और सब्र से कारोबार को वसीयत दी। वक्त गुजरता गया और वो शहर नौराबाद का सबसे कामयाब ताजिर बन गया। अहमद ने एक खूबसूरत महल नेमा घर बनाया जिसके दरवाजे पर सुनहरी हुरूफ में ये आयत किंदा थी, अल्लाह बादशाही का मालिक है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलत दे, और वो हर चीज पर कादिर है। अहमद के घर का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता। जो भी गरीब, मुसाफिर या भूखा आता, खाना खाकर इज्जत से रुखसत होता। यहां तक कि परिंदों के लिए भी रोज दाना और पानी रखा जाता। एक शाम जब सर्द हुआ, पूरे शहर में बह रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा शख्स जिसके कपड़े फटे और जिस्म लर्ज रहा था, आहिस्ता आवाज में बोला, बेटा, कुछ खाने को मिल जाए। अहमद ने फौरन उसे अंदर बुलाया, नरम कंबल ओढ़ाया, नए कपड़े दिए और गर्म खाना पेश किया। नौकर ने जब उसके चेहरे पर नजर डाली तो आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद ने हैरत से पूछा, क्या हुआ फरीद, तुम क्यों रो रहे हो? नौकर बोला, मालिक, ये वही शख्स है जिसने बरसों पहले आपको अपने दरवाजे से धिक्के देकर निकाला था। अहमद लम्हा भर को खामोश रहा। फिर उसने बूढ़े को गौर से देखा। वाकई वही शख्स था, कमाल मेयर, जो कभी मोहल्ले का सबसे अमीर और मगरूर आदमी समझा जाता था। अहमद के चेहरे पर नरमी आ गई।
وہ मुस्कुरा कर बोला, भाई क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं वही अहमद हूं जो कभी तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ लौटा था। उस माथे पर वही जख्म आज भी बाकी है जो तुम्हारे धक्के से लगा था। लेकिन सुनो, उस दिन मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि वो मुझे रिस्क भी दे और इज्जत भी, और आज देखो वही रब ने मेरी दुआएं सुन ली। वाकई इज्जत और ज़ल्लत सिर्फ उसी के अख्तियार में है। कमाल मीरज़ार व कितार रोने लगा। उसने अहमद के पांव पकड़ लिए और बोला, भाई मैंने गुरूर किया, लोगों को हकीर समझा, इसी गुरूर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा कारोबार तबाह हो गया, औलाद मुझसे रोट गई और मैं सड़कों पर आ गया। सच कहता हूं अहमद, इंसान को कभी दौलत पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अहमद ने उसे उठाया, गले से लगाया और बोला, अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है। भाई तुम अब अकेले नहीं हो, ये घर भी तुम्हारा है, ये खाना भी तुम्हारा, और मैं भी तुम्हारा भाई हूं। उसके बाद अहमद के आंसू भी बहने लगे। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। बस दिलों में अल्लाह के इंसाफ और रहमत का यकीन जिंदा हो चुका था।